Hello and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to start with our second chapter of history, that is the European colonialism. Now we are going to start with the introduction part of colonialism. So before starting to this, I would like to tell you that I have already uploaded video on the solved exercise of this chapter. You can watch that video in the playlist of my YouTube channel, or also you can I will drop down the link of that video in the description box below. So if you have not subscribed to my channel, you can subscribe to my YouTube channel and also hit the bell icon, so you will get the notification of my video. और उसकी जो setting है वो all पे करो. Now we will start with our chapters, and don't forget to share it with your friends. So colonialism is a part of imperialism, the act of a developed nation occupying the land of less developed distant nation and establishing their rule on the occupied country is known as colonialism. So ये important है, ये lines जो है colonialism तक आप ये underline करो, because you can use this as introduction. मैंने जितने भी question answers डाले हैं उसमें मैंने ये use किया है as an introduction. So colonialism and imperialism में basically difference क्या है? So most of the people get confused in it. So नहीं, दोनों का भी almost same ही meaning है. colonialism and imperialism में जो countries है, जो powerful countries है, dominating countries है, they mostly suppress the other nations, other जो भी developed countries नहीं है या फिर जो भी other countries है उसको वो लोग suppress करते हैं. बट इनमें डिफरेंस इतना है कि colonialism में you actually establish control on that land and you have all the powers of that land, political, economics, so सब आप dominate करते हो. And imperialism is only that you are controlling that country, okay, economically या फिर politically. There you are not actually establishing your rule as such, but colonialism में पूरा rule आपका रहता है. इम्पेरियलिज्म मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें जो डोमिनेटिंग कंट्री है या पावरफुल कंट्री है वो डोमिनेट करती है जो लेस पावरफुल कंट्री है उसको. इसीलिए इन द स्टार्टिंग दे हैव सेड दैट कोलोनियलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म, मतलब डोमिनेशन ही है कोलोनियलिज्म मतलब. बट कोलोनियलिज्म में जैसे कि हमारे इधर एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का रूल पूरा हो गया था, सो दिस इज़ कॉल्ड एज कोलोनियलिज्म. ओके, स्टार्टिंग में दे कम एंड ये लोग धीरे धीरे आते हैं एंड धीरे धीरे पावर इस्टेब्लिश करते हैं. ओके, सो ये उनकी कॉलोनी बन जाती है. जो कंट्री के सब वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं वो उनकी कॉलोनी बन जाती है. जैसे कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. जैसे एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है, एशिया एंड अफ्रीका में जो कॉलोनीज थे. अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी. सो योर कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, सो ये जो थे ये मेन कंट्रीज़ थे. ये लोगों ने सबसे ज़्यादा कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी और ये एकदम फोरफ्रंट में थे इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज. सो एक्सेट्रा ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड द नेशंस इन एशिया एंड अफ्रीका एंड एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज देयर. इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड. One of the main characteristic of colonialism is to transport the raw material from the colonies to one's own country and use the colonies as marketplace for selling their final products. Now this is clear कि जो countries थे, जो डोमिनेटिंग कंट्रीज थे, ये बेसिकली इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे या फिर जो रिसोर्स है वो उनको चाहिए होते थे एंड दे रॉ मटेरियल्स के लिए. सो ये सब जो भी वो रिसोर्सेज सिर्फ ना कि फार्मिंग रिलेटेड हो, दे मेटल्स भी हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स हो सकते हैं, सिल्वर एक्सेट्रा. कोल was also a precious thing at that time because steam engine and all सब कोल पे चलते थे. So coal was also important. Colonialism indeed gives rise to, और उनका जो प्रोडक्ट बना के they used to sell this in the marketplaces of the colonies only. Like टी यहाँ से ये किया जो और वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया एंड यहाँ पे वापस they used to sell them. Now colonialism indeed gives rise to
political and economic slavery, but it also causes psychological slavery. In the racial attitude of the colonist countries and the subsequent treatment given to the native people creates a sort of inferiority complex in their mind, right? So colonialism सिर्फ political या फिर economic slavery नहीं देता था, but ये आपकी जो psychology है उसको भी affect करता था, right? Psychological slavery, like वो लोग यहाँ पे एक sentence दिया है, the sun never sets on the British Empire. So the Britishers used to say that कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर. ये एक इंडिकेशन था कि जो कंट्रीज़ है वो उस मतलब ब्रिटिशर्स दे आर बॉर्न टू रूल ऑन द अदर कंट्रीज़, या फिर उनको एक्सप्लॉइट करना या फिर उनको स्लेव जैसे ट्रीट करना ऐसे. एंड वो लोग रेशियल जो थी, वो लोगों को रेशियल सुपीरियोरिटी थी जो भी यूरोपियंस थे. सो दे यूज़ टू डिस्क्रिमिनेट. अगर अफ्रीकन्स लोग आप देखोगे, वो लोगों को बहुत ही वो लोगों ने एज अ स्लेव ट्रीट किया. मतलब दे यूज़ टू ट्रांसपोर्ट बहुत चीप रेट में, दे यूज़ टू ट्रांसपोर्ट दी अफ्रीकन पीपल एज स्लेव्स. एशियन लोगों को भी किया, बट अफ्रीकन लोगों को बहुत ही वो लोगों ने ऐसे स्लेव्स बहुत चीप रेट में दे यूज़ टू सेल देम एज अ स्लेव्स. एंड ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन दे यूज टू फील अनवर्दी. लाइक आपको ऐसे सब ट्रीटमेंट मिला, सो यू विल ऑल्सो फील अनवर्दी. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो नेटिव्स रहते थे उनको खुद के हिस्ट्री पे एक या फिर खुद के कल्चर पे एक अपोलोजेटिक आउटलुक डेवलप हुआ, एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उनके माइंड में तैयार हुआ. सो मोस्टली द ब्रिटिशर्स ऑल्सो यूज टू से कि जो ये लोग रूल कर रहे हैं, दे आर लाइक दे आर ट्राइंग टू सिविलाइज द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ऐसे ये लोग बोलते थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लेड टू रिलीजियस कन्वर्जन ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस कन्वर्जन भी हुआ बहुत सारे लोगों का. So it was the way to indicate that worldwide spread of the British colonies. The British Empire encompassed the continents of Asia, Africa, America and Australia. There was a commercial revolution. and अमेरिका का अगर बोलोगे, सो अमेरिका के जो नेटिव्स है, दे अभी के जो दे आर नॉट एक्चुअली द नेटिव्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पे बहुत सारे जो नेटिव्स हैं उन लोगों को ऑलरेडी डिस्प्लेस किया था. बहुत ही कम नेटिव्स जो है अमेरिका के वो भी उधर होंगे. So there was a commercial revolution in the 15th century in Europe. As a result of the discoveries of new lands by various seafarers, the traditional ways of commerce changed radically, and European traders began to establish themselves firmly in Asia and Africa. So हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर कमर्शियल रेवोल्यूशन था यूरोप में. एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे मास प्रोडक्शन हुआ एंड बहुत सारे डिस्कवरीज हुए न्यू लैंड्स के. जैसे कि वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के किंग्स एंड क्वींस, दे यूज्ड टू एनकरेज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोगों ने यहाँ से सिर्फ यूरोप से बहुत सारे ट्रेड रूट्स फाइंड किए थे. एंड दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर कंट्रोल ऑन अदर्स लैंड. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लोग इकोनॉमिकली धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने लगे एंड खुद को फर्मली एस्टैब्लिश करने लगे. इसका मेन रीज़न था एक मतलब इकोनॉमिक नेशनलिज्म. वी हैव सीन व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 1. नेक्स्ट इज colonialism, its meaning and nature. Now we are going to start with the colonialism, meaning and nature. So Europeans reached all over the world with various intentions such as the urge for adventures, to earn name, to discover unknown lands, to search for gold mines, etc. Later the trade and commerce increased to a great extent and the European countries began to compete with each other. Now we have seen colonialism. It means एक किसी country ने दूसरे country पे rule establish किया, उसकी colony establish की and उधर के जो भी powers है वो ये exercise कर रहे हैं. So यूरोपियंस जो थे, हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में. एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था एंड दे नीडेड टू सर्च फॉर न्यू मार्केट प्लेसेस. और वहाँ पे रेनेसांस पीरियड में हम लोगों ने देखा लास्ट चैप्टर में कि रेनेसांस पीरियड में बहुत सारे जो किंगडम्स थे, उनके जो किंग्स एंड क्वींस थे, दे एनकरेज देम टू गो ऑन सी, दे एनकरेज द सी फेरर्स to go on
एक्सपेडिशन एंड सर्च न्यू लैंड्स। तो ये लोगों ने बहुत सारे डिस्कवर किए अननोन लैंड्स। देन इन लोगों के बहुत सारे प्राइम इंटेंशंस थे। इनका मेन इंटेंशन जो था वो कॉलोनी इस्टेब्लिश करना, या फिर जो लैंड पे वो जाएंगे उधर की पावर ग्रैब करके इनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, यही इनका मेन इंटेंशन था। कि ये एक था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। वी हैव सीन व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन द फर्स्ट चैप्टर। सो यहाँ पे बहुत सारे इंटेंशंस थे। एक तो इनको देयर वाज एन अर्ज फॉर एडवेंचर्स, देन इनको सब नाम कमाना था। वी हैव ऑल्सो सीन मेनी साइंटिस्ट इन यूरोप, जैसे कि न्यूटन हुआ, कीपलर हुआ, गैलीलियो हुआ। So to search for gold mines, etc. Later the trade and commerce increased, and because of this, after finding new places, वहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे इनके गुड्स एंड जो भी प्रोडक्शन हुआ था, सो इनको प्रॉफिट मिलने लगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज at a great extent, and the European countries began to compete with each other. So यूरोप का अगर मैप देखा तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे इटली, पोर्तुगल, स्पेन, ऐसे बहुत इंग्लैंड, ये सब बहुत सारे कंट्रीज जो थे, फ्रांस, खुद मतलब compete करने लगे थे। सो यूरोपियंस इन द सेंस सिर्फ हम लोग ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहे, यूरोपियंस में सब आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं, स्पेनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं। सो wherever the Europeans went, they established their colonies. Okay, this was the prime intention, to establish their colony. So there was a competition to gain economic, social and political supremacy among them. So extreme nationalism, feeling of racial superiority, ये हम लोग देखेंगे in detail in further in this chapter. So racial superiority, industrialization, aggressive approach, etc. So इनको extreme nationalism की feeling थी, economic nationalism especially. So फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी तो हम लोगों ने देखा है, ये लोगों ने अफ्रीकन और एशियन जो भी कंट्रीज़ में जो लोग थे वहाँ के, इन रेसिज्म इज़ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सो डार्क स्किन कलर के जो लोग हैं वो अफ्रीका में ज़्यादा है, एंड इवन एशिया में एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियंस कलर वाइज। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस दे वर फीलिंग रेशियल मतलब सुपीरियोरिटी। सो ये लोग बोलते थे कि वी आर हियर टू सिविलाइज यू, मतलब ये लोग खुद बोलते थे कि एशियन अफ्रीकन लोगों को सिविलाइज करने के लिए। एंड समटाइम्स दिस लेड टू द कन्वर्जन ऑल्सो, रिलीजियस कन्वर्जन। सो यहाँ पे फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। वी हैव सीन वहाँ पे स्टीम इंजन हुआ, देन बहुत सारे न्यू मशीन्स इन्वेंट हुए, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग म्यूल वगैरह। तो एग्रेसिव अप्रोच एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। और अगर ये लोग ट्रेड परमिशन मांगते थे और इन लोगों को नहीं मिला ट्रेड परमिशन, या फिर उन लोगों को जो फेवर्स चाहिए थे उस किंगडम्स के, बिकॉज मोस्टली किंगडम्स ही थे, अमेरिका में इतने नहीं थे, बट एशियन अफ्रीकन मतलब जो भी एशियन कंट्रीज़ है उधर किंगडम्स थे। सो इनको अगर फेवर नहीं मिला प्रॉपर, या इनको सो स्लोली दे स्टार्टेड देयर एग्रेसिव अप्रोच। दे यूज टू, जहाँ पे भी ये लोग जाते थे वहाँ के लोगों को दे यूज टू मेक स्लेव्स या फिर इन्फीरियर ट्रीटमेंट देते थे। एंड एग्रेसिव अप्रोच लाइक वॉर, दे यूज टू फाइट अ वॉर, या फिर उन लोगों को मारते थे एंड ऑल। सो दिस वर द एग्रेसिव अप्रोच and some factors that led to the growth of colonialism. So Europeans went to America, Australia, New Zealand. They found that the climate of these regions are favorable for them. However, यहाँ अगर हम लोगों ने देखा कि ये क्लाइमेट जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो ये नॉर्दर्न पार्ट में, अगर आप जो मैप है आपका, सो ये थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में आता है यूरोप। सो इसके जो क्लाइमेट है कंपैरेटिवली सिमिलर आता है, बट एशिया का क्लाइमेट इज़ टोटली डिफरेंट फॉर देम। बट बिकॉज ऑफ देयर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, एंड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, सो इन लोगों ने क्लाइमेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिकॉज अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे अफ्रीका का क्लाइमेट और यूरोप का क्लाइमेट, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। एंड इवन इफ यू कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ एशिया, सो वेदर the climate was favorable or unfavorable, they displaced the indigenous people in their own lands.
So the British, the Dutch, the Portuguese and the French all devised several ways for demoralizing the indigenous people. If you see अमेरिका के जो नेटिव्स थे उन लोगों को बहुत डिस्प्लेस किया गया था. मतलब आज के जो अमेरिका के नेटिव्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली द नेटिव्स ऑफ अमेरिकन, बहुत ही कम रहेंगे बिकॉज वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे तभी अमेरिकन के नेटिव्स. एंड दे यूज टू फाइंड न्यू वेज फॉर डिमोरलाइजिंग द पीपल. वहाँ के लोगों को पूरा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था बिकॉज ऑफ दीज पीपल. सो हम लोगों ने देखा भी ये लोग फ्रेज क्या यूज़ करते थे, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. यहाँ पे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लोग मतलब दे यूज टू इंडिकेट कि ये वी आर बॉर्न टू रूल ऑन यू या ऐसे कुछ इंडिकेट करना चाहते थे, इसलिए ये लोग ऐसे बोलते थे. So because of this the people used to get demoralized. Now Europeans needed to capture newer marketplaces for selling their surplus goods. हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज अ नीड कि वहाँ के अगर जो पॉपुलेशन है, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मशीन जो है वो 10 लोगों का काम करेगी. सो जो बाकी नाउ ओनली 1 person इज नीडेड टू हैंडल दैट मशीन एंड बाकी के 9 लोगों का जॉब गया. सो ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गए एंड बिकॉज ऑफ दिस वो लोग ऐसे कुछ जो भी नई नई चीज़ें इन्वेंट करते थे दे यूज टू मतलब एक चीज़ इधर से जॉब गई तो उनको नए स्किल्स देते थे एंड नया कुछ इन्वेंट करते थे. सो वहाँ पे वो लोगों को जॉब मिल जाता था एंड मोस्टली जो मर्चेंट्स एंड ऑल थे दे यूज टू कम टू अदर, जो भी उन लोगों की कॉलोनीज थी या दूसरे जो वो लोगों ने लैंड्स ढूंढे थे बहुत सारे डिफरेंट एशिया अमेरिका के, वहाँ पे दे यूज टू एस्टैब्लिश देयर रूल एंड वहाँ पे एज अ मार्केट प्लेस वो लोग देखते थे. एंड जो भी सरप्लस प्रोडक्ट्स जो गुड अभी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे वर हैविंग एक्स्ट्रा गुड्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. सो सब यूरोप में ही नहीं ये लोग कर सकते थे, इन लोगों को बाहर भी सेल करने की ज़रूरत थी विच वर इंक्रीजिंग. तो ये मास प्रोडक्शन जो था ये लोगों को सेल करने की ज़रूरत थी एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लोगों ने न्यू कॉलोनीज़ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना ट्रेड शुरू किया. Besides, they also needed additional sources that will provide ample raw material. अभी सेल तो किया बट अभी बहुत सारा रॉ मटेरियल भी ज़रूरत है. इफ़ यू आर बिकॉज दे आर नॉट ओनली सेलिंग दोज प्रोडक्ट टू यूरोप, दे आर सेलिंग दोज प्रोडक्ट टू एशिया, दे आर सेलिंग दोज प्रोडक्ट टू अफ्रीका, अमेरिका. अगर आप देखोगे मैप कितना बड़ा है और बहुत सारे कॉलोनीज हुई. सो ये रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत थी इनको. सो दे यूज टू टेक दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज ओनली एंड ये कॉलोनीज से लेके खुद के इधर मैन्युफैक्चर करते थे एंड वापस कॉलोनीज में ही ये लोग सेल करते थे. सो इन द लेटर हाफ इन द 19th century इंग्लैंड had built a very flourishing trade as a result of industrial revolution. The British with the help of their naval forces, ब्रिटिश का नेवल फोर्सेस बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू, मतलब तभी नेवल फोर्स किसी का भी अच्छा नहीं था जब भी ब्रिटिशर्स का नेवल फोर्स अच्छा था. सो इट हैड एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी इन द एशियन एंड तभी एरोप्लेन वगैरह ऐसे कुछ इन्वेंट नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ. सो आपके पास चीपेस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो वो ऑफ कोर्स सी रूट्स है बिकॉज रेलवे तो हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले नहीं सकते. सो दी सी रूट्स वाज ओनली द ऑप्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश जो थे इन लोगों की सुप्रीमेसी हो गई बिकॉज इनका नेवी अच्छा था, नेवल फोर्स इनका अच्छा था इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स. अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट्स, इन्वेस्टिंग surplus profits, increasing trade with the colonies for good investment, profits on investment. This was an unending chain. मतलब कॉलोनी से ये लोग प्रॉफिट अर्न करते थे प्रोडक्ट सेल करके, फिर वो प्रॉफिट है किधर और जगह इन्वेस्ट करते थे. अगर एशिया से कलेक्ट किया तो ये लोग किसी और कॉलोनी में करेंगे, एशिया में सपोज इंडिया से कलेक्ट किया. सो जो दे विल ट्राई टू हैव होल्ड ऑन अदर रीजन, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे म्यांमार, भूटान वगैरह जो भी आजू बाजू के रीजन्स है वो. देन वो प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेड विथ द कॉलोनीज फॉर गुड इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेड इंक्रीज करेंगे देन प्रॉफिट्स. और ये इन्वेस्टमेंट किए थे तो अभी इंडिया से भी मिलेगा, मतलब एशियन कंट्रीज से भी मिलेगा, अफ्रीकन कंट्रीज से भी मिलेगा और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी मिलेगा. सो दिस वाज एन अनएंडिंग चेन एंड दिस वाज
This was an unending chain. France, Belgium, Italy, and Germany were the countries who, like England, strove to establish the colonies. बहुत सारे कॉलोनीज थे बट इंग्लैंड की ज़्यादा थी बिकॉज क्या इनका नेवल फोर्स अच्छा था एंड हम लोगों ने जैसे देखा ये जो मैप है इसके लिए सी रूट्स इम्पॉर्टेंट थे और इनका नेवी अच्छा था इसलिए बिकॉज ऑफ दिस दे वर इट वाज इजी फॉर देम टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। एंड यहाँ पे रिचनेस देख के इंग्लैंड की बाकी के जो कंट्रीज है इवन दे थॉट दैट वी शुड ऑल्सो इस्टेब्लिश द कॉलोनीज।